Hare Krishna. Once again, welcome to my channel Jigyasu Muni. As you know that we are starting with our reading of the Bhagavad Gita, so we are beginning with the introduction. And today is yesterday we finished the prayers. Today we are going to begin with the introduction. So this is the part one of introduction. Since introduction is really long, I have broken that. Uh, I think introduction is close to some 35 to 40 pages. So I have tried to broken that into 5 to 6 sessions so that we can have some detailed understanding about the introduction. First of all, we'll try to get the blessing from the Guru. So will all of us can do the Guru Pranam mantra. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshulmritam Yena Tasmai Shri Guru Me Namaha. मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप ये मंत्र बोलें तो इसका मीनिंग भी जरूर समझें, ताकि और ओवर द टाइम ये बार बार करने से ये ज्ञान और ये मंत्र और उसका शब्दार्थ जो है आपके हृदय में बैठ जाएगा। उसके बाद जब भी आप ये मंत्र बोलेंगे, आप उसके पीछे का जो मीनिंग है उसको भावना में ला सकेंगे। तो आज हम टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसमें है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ भगवत गीता, व्हाई वी नीड अ न्यू एडिशन ऑफ भगवत गीता, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, what qualification do we need to understand Bhagavad Gita, relationship with the Lord, or also known as Sarup Siddhi. Uh, then we also understand how Arjuna accepted Bhagavad Gita. We can also go through that who can understand Krishna and how to understand Bhagavad Gita, what is the purpose of Bhagavad Gita, and who is the proper student of Bhagavad Gita. So all these 10 topics we are going to cover in the first part of the introduction itself. So I would say I think this introduction is really a crisp knowledge of all the Upanishads and I would say full Bhagavad Gita. So that's why we are trying to put more time in going through this introduction so that we can get the maximum benefit when we are trying to read the Bhagavad Gita. Because whenever you are trying to study anything, it's really important that we get an overall picture. Unless we get an overall picture, it will be difficult to understand the individual topics or the subjects which are being discussed in the book. So getting the overall picture is really important. Second thing is that whenever we plan something, we try to make an overall plan. So our mind thinks really good when it sees some kind of a map. So this introduction is providing that full map of the Bhagavad Gita. So if we understand this well, then I think understanding the Bhagavad Gita will also become easy. So let's just deep dive into this. So here is a tree kind of a structure I got from the Vedic literature. So this Vedic Sanatana literature has been divided into Shruti, Smriti, Ityas, Puranas, Agamas, Darshanas. Then in the Shrutis you have Vedas, Upvedas, Vedangas. Uh, then in the Smritis you have Manu Smritis. In the Ityas you have Ramayana, Mahabharat, and in the Mahabharat you have Bhagavad Gita. So you can really see that we really have some vast knowledge. So Vedas are nothing but knowledge, and the Vedic knowledge is infallible. And Bhagavad Gita is the crisp knowledge of this full Vedic knowledge. So that's why we don't have to go and read each of these individual component. We can really read the summary which has been given of all the scriptures. So the main parts which are covered in Bhagavad Gita is the three main topics, which is Sambandha, Abhidheya, and Prayojana. And these things are being discussed in each Vedic literature. So Prabhupada here says that there are three topics in the Vedas. One is to understand our relationship with Krishna, another is to act according to that relationship, and third is to reach the ultimate goal of Prayojan. So इन सभी बुक्स में हम देखते हैं तो मेनली तीन टॉपिक ही कवर हुए हैं। संबंध, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, क्या हमारा संबंध है, हम हम उस रिश्ते के हिसाब से किस तरह से हमारा एक्शंस होने चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, और तीसरा ये है कि अगर वो एक्शंस हम फॉलो करते हैं संबंध जानने के बाद तो हमारे को क्या मिलने वाला है, हमारा गोल क्या है, तो प्रयोजन।
तो ये तीनों चीजें, तो सारे वेद्स जो हैं ये सभी इन तीन टॉपिक पे ही डिस्कस कर रहे हैं। और सिंस डेफिनेटली भगवत गीता इज आल्सो पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, तो भगवत गीता भी इसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रही है। तो शुरू करने से पहले मैं एक भगवत गीता महात्मा का टेक्स्ट 6 है, उसको मैं रिट्रेट करना चाहूंगा, जो कुछ इस तरह से है। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधी भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इस वर्ष में कहा गया है कि अगर हम सभी वैदिक उपनिषदों को गाय के समान माने, तो उन गाय का जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है वो उसका दूध है। तो उस सारे वैदिक लिटरेचर को अगर हम गाय माने, तो उसका दूध निकालने वाले जो गोपाल हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। तो क्रिस्प नॉलेज जो निकाल रहे हैं वो नॉलेज है। और ये नॉलेज कौन पी रहा है? ये नॉलेज वो हम अर्जुन को दे रहे हैं, जिसको एक गाय के बछड़े की तरह माना गया है, जो इस गीता के अमृत को ले रहा है। डेफिनेटली हम जानते हैं कि बछड़े के पीने के बाद भी गाय में एक्सेस मिल्क रहता है, और वो एक्सेस मिल्क जो है वो कौन लेने की कोशिश करते हैं? जो बहुत बुद्धिमान श्रेष्ठ मनुष्य जो हैं, बेस्ट अमंग द मेंस, दे आर वही लोग हैं जो उस गीता अमृत जो भगवान कृष्ण ने वैदिक लिटरेचर नामक गाय का निकाला है, उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इससे समझिए कि भगवत गीता पढ़ना कितना जरूरी है, और ये कितनी हाई लेवल की नॉलेज है। हम बहुत सारे टॉपिक्स दुनिया भर के हम पढ़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बड़े होते हैं तो टेक्नोलॉजीज के बारे में, जॉब्स के बारे में, न्यूज़पेपर्स में, बट जो सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है, हम उसको पढ़ने का समय नहीं निकालते। इनफैक्ट हम डिपेंड करते हैं कि कोई उसकी समरी करके हमें दे दे, या कोई हम टीवी सीरियल देख लें, तो वो कभी भी हमें सही पिक्चर नहीं दे सकेंगे। इसलिए बुक्स रीडिंग करने की जो इम्पोर्टेंस है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो टाइम स्पेंड करिए और बुक्स को रीड करिए। मेरे इन प्रेजेंटेशन बनाने का मेन एम ही ये है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि वो भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करें। तो प्रभुपाद सबसे पहले शुरू करते हैं कि भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा गया है, और ये सारा जो वैदिक नॉलेज है उसका एसेंस है। उसका वैदिक नॉलेज का पूरा निचोड़ जो है लिया गया है, वो गीता में है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उपनिषद जो हैं वो 108 मेन उपनिषद माने गए हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता इन सब उपनिषद से इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये खुद भगवान के द्वारा, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हैं, उनके द्वारा बोली गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रभुपाद एड्रेस करते हैं कि भगवत गीता के इस नए एडिशन की जरूरत क्यों थी? पहले भी बहुत सारे एडिशंस थे, सबने अपना अपना ट्रांसलेशंस दिया है, तो ये नए एडिशन की जरूरत क्यों थी? तो इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी भगवत गीता के एडिशंस और ट्रांसलेशंस हैं, उनमें से कोई भी अथॉरिटेटिव नहीं है। सभी में जो भी ट्रांसलेट करने वाला है या कमेंट्री करने वाला है, वो अपने मत को भगवत गीता के माध्यम के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से कोई भी ये एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। सब में राइटर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है, अपना ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा है। और रियली अगर हम सच में ट्रू नॉलेज जानना चाहते हैं, तो हमें डेफिनेटली भगवान कृष्ण का पक्ष क्या है वो जानना चाहिए। उन्होंने किस उद्देश्य से भगवत गीता बोली है वो जानना चाहिए। अगर हम वो नहीं जानेंगे तो गीता पढ़ने का जो हमारा एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमें फिक्स करना होगा। और इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैंने ये भगवत गीता एज इट इज, उन्होंने टॉपिक में भगवत बुक्स के नाम में ही जोड़ दिया एज इट इज, कि भगवान कृष्ण ने जैसा कहा उसी स्पिरिट में भगवत गीता को दोबारा समझना। तो उसके लिए एक बुक की जरूरत थी, और इसीलिए भगवत गीता का ये नया एडिशन बनाया गया, जो भगवत गीता एज इट इज, बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। अब ऐसा क्यों? तो आप देखिए, ये मैंने कुछ बुक्स देखी हैं जो अलग अलग राइटर्स ने लिखी है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आप देखिए,
फाइनेंशियल लेसन सिखा रहे हैं भगवत गीता के अंदर, कहीं पे बिजनेस लेसन सिखाए जा रहे हैं, कहीं पे लीडरशिप स्किल सिखाई जा रही है भगवत गीता से, कहीं पे एथिक्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है भगवत गीता पे, कहीं भगवत गीता का यूज लेके माइंड मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है। तो आप देखिए, बिजनेस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लीडरशिप, क्या भगवान कृष्ण आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? डू यू रियली थिंक इज दैट? हाँ, इन सब का कुछ पोर्शंस हो सकते हैं जो इन टॉपिक्स पे भी बात करते हों, लेकिन क्या इस भगवत गीता का मेन उद्देश्य भगवान कृष्ण का क्या था? मेरे ख्याल से इन सभी वर्जन्स में वो जो पक्ष है वो मिस हो गया है। इसीलिए प्रभुपाद को एक नया वर्जन लिखना पड़ा भगवत गीता एज इट इज। तो आइए अब समझते हैं कि भगवत गीता की स्पिरिट क्या है, या किस तरीके से भगवत गीता को हमें लेना चाहिए। तो इसके बारे में सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं कि वो भगवत गीता को हमें किस तरह से लेना है, समझना है, ये भगवत गीता में ही दिया गया है, और ये भगवान कृष्ण खुद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही भगवत गीता को बोलने वाले हैं। तो इसमें सबसे अच्छी एक एनालॉजी दी जाती है कि जब भी हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन के साथ एक मैनुअल आता है जिसमें, या उसके लेबल पे लिखा होता है कि क्या डोज में लेना पड़ता है, या डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग लेते हैं। आप मन मर्जी तरीके से कोई भी दवाई कभी भी शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो स्टोर पे मिलती ही नहीं है जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। तो आप देखिए, तो भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण है, वो क्या बता रहे हैं, भगवत गीता किस तरह से समझनी चाहिए, किस तरह से इसे लेना चाहिए। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली भगवत गीता का एसेंस जो है वो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हमें भगवत गीता किस तरह से समझनी और अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो प्रभुपाद कहते हैं, अ, महाभारत में जब भगवत गीता लिखी गई है तो उसके अंदर कृष्ण को हमेशा भगवान कह के प्रोनाउंस किया गया है, श्री भगवान वाच। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कृष्ण अ, जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। और ये कंफर्म किया गया है सारे ग्रेट आचार्य, स्पिरिचुअल मास्टर लाइक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्का स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, और जो भी वैदिक नॉलेज की अथॉरिटीज हैं, वो सब ये कहती हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वो ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। उसके अलावा हम देखते हैं कुछ किताबों में, जैसे ब्रह्म संहिता में, ऑल द पुराणास, श्रीमद् भागवतम और भगवत पुराण, ऑल ऑफ देम आर सेइंग, ये सभी कह रहे हैं कि भगवत गीता कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और उसके अलावा भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बुक या ये नॉलेज जो हम ले रहे हैं, ये नॉलेज कौन दे रहा है हमको। खुद द भगवान, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो ये हमें नॉलेज दे रहे हैं। पहली पार्ट ये हमें समझनी चाहिए। दूसरी पार्ट, इस बुक को समझने का क्या तरीका है वो उन्होंने बता रखा है, तो हमें वो तरीका समझना चाहिए कि भगवत गीता किस तरीके से लेनी चाहिए। अगर हम ये दो पार्ट समझे बिना भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्स के साथ, तो हम कभी भी भगवत गीता के एसेंस को नहीं समझ पाएंगे। उससे होगा क्या कि हमारे अंदर का जो ओपिनियन है, हम वो ओपिनियन उस भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते उस पर थोपने की कोशिश करेंगे, और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जैसा हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। ये 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 हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी कहिए, कि जहां हम हमेशा अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान कृष्ण का पक्ष सुने इधर। और प्रभुपाद जो ये एक डिवोटी हैं, वो भगवान का ये शुद्ध पक्ष जो है हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ रेफरेंस दिया गया है भगवत गीता 4.1 का। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्।
तो यहाँ हम देखते हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को यह उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। फिर उसके बाद हम भगवत गीता 4.2 देखते हैं, जिसमें कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार यह परम ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम के में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया है। तो इन दोनों वर्सेस से 4.1 और 4.2 हम क्लियरली समझ सकते हैं कि भगवत गीता की जो नॉलेज है वो एक डिसाइप्लिक सक्सेशन में एक गुरु परंपरा में लेना जरूरी है, और ये गुरु परंपरा भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है, तभी ये ऑथेंटिक होती है, और हम उसका जो मर्म है, जो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, हम उसे समझ सकते हैं। इस जैसे भगवान कृष्ण ने विवस्वान सन गॉड को कहा, सन गॉड ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और इस तरह से ये परंपरा चलती आ रही। जब ये परंपरा नष्ट हो गई तो भगवान कृष्ण को खुद यहाँ आना पड़ा, और वापस से उस परंपरा को इस्टेब्लिश करना पड़ा, और अर्जुना जो थे वो उस परंपरा के फर्स्ट शिष्य बने, जिन्होंने डायरेक्ट भगवान से वो नॉलेज ली। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ये कोई नई नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, ये वही पुरानी नॉलेज है, पुरातन विज्ञान दे रहे हैं वो। तो ये भी समझना जरूरी है कि भगवान कृष्ण ने कोई नई नॉलेज उत्पन्न नहीं करी अर्जुन को देने के लिए, वो वही पुराना ज्ञान योग समझा रहे थे। सो इससे हम समझते हैं कि वैदिक नॉलेज जो है वो समय से डिस्ट्रॉय नहीं होती, और वो हर समय पर लागू होती है। कुछ नॉलेज ऐसी होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे रिलेवेंट होती हैं, और उस टाइम के बाद उस नॉलेज की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। भगवत गीता की नॉलेज उस तरह की नहीं है, हम इसे कहेंगे भगवत गीता की नॉलेज जो है वो कालातीत है। और जब भी ये परंपरा नष्ट हो जाती है तो भगवान को आना पड़ता है, और इस परंपरा को पुनः एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो हरे कृष्णा मूवमेंट या इस्कॉन जो हम कहें, वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का है। यहाँ प्रभुपाद ने पूरी परंपरा एक्सप्लेन करी है कि किस तरह वो कृष्णा से ये परंपरा चलती आ रही है, और किस तरह से कंटिन्यू हुई है। इस परंपरा पे भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है भगवत गीता का वर्स नंबर 4.3, जो कुछ इस तरह से है, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतद् उत्तमम्। यहाँ भगवान कृष्ण फिर से कह रहे हैं कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। See this old knowledge, so this is not a new knowledge, and it's a विज्ञान, it's a science, it's an ancient science। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये कोई किसी के मन की मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड प्राचीन ज्ञान वैदिक नॉलेज जो दे रहे हैं वो इनवॉलेबल वैदिक नॉलेज है। अब आती है बात कि भगवत गीता को समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि क्वालिफिकेशन अगर जो क्वालिफिकेशन अर्जुन की है, अगर वही क्वालिफिकेशन अगर हम अपने में डेवलप करें तो भगवत गीता समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं 4.3 में, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सीक्रेट जो है वो रिवील कर रहा हूँ। तो इसका मतलब वन मस्ट बी अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हु इज इन अ रिलेशनशिप विद गॉड। तो हम सबको भगवान का भक्त होना चाहिए, हम सभी का भगवान कृष्ण के साथ एक एक संबंध होना चाहिए।
और प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार जब हम भक्त बन जाते हैं भगवान के, तो हमारा संबंध भगवान के साथ स्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद ये भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है, ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। और इसलिए कहा गया है कि भगवत गीता जो है, ये सिर्फ भगवान के डिवोटीज के लिए बनी गई है। ये दूसरे लोगों को इसके ऊपर कमेंट्री करने का कोई हक नहीं है। जिस तरह अगर आपके पिता किसान हैं, वो आपको एक खेत देते हैं, तो बेटे का उस पर हक होता है, क्योंकि बेटे का पिता के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद उस खेत पे वो क्या करना चाहता है, ये बेटे की इच्छा है। तो इसीलिए भगवत गीता के बारे में किसी भी और को अपने ट्रांसलेशंस या अपने मत नहीं देने चाहिए। सिर्फ एक भगवान का भक्त ही भगवत गीता के ऊपर ट्रांसलेशंस या आप जब अपने मत या प्रपोर्ट्स देता है, तो एक आम आदमी को सिर्फ वही सुनने चाहिए। और प्रभुपाद ऐसे ही भगवान के भक्त हैं, इसीलिए हम प्रभुपाद का व्यू पॉइंट इस भगवत गीता में सुनना चाहेंगे, क्योंकि वही भगवान कृष्ण का भी मत है। अब नेक्स्ट बात आती है कि रिलेशनशिप विद द गॉड। तो भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाना, ये हम, और इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि हर भक्त जो है उसका भगवान के साथ एक रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप को 5 अलग अलग कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी क्या है? पैसिव स्टेट। इसमें क्या है कि जैसे आप भगवान को बहुत महान तो मानते हैं, लेकिन आप में सेवा भाव डेवलप नहीं। आप भगवान को ग्रेट मानते हैं, तो हम कहते हैं कि ट्रीज है, काउज है, या इवन कुछ डिवोटीज जो भगवान को मंदिर में जाते हैं, उनके ऐश्वर्य को देखते हैं और बड़े उनको महान समझते हैं, बट इसके बाद वो आगे कुछ नहीं पढ़ते। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज क्या हो गई? एक्टिव। वहां पे आप एक्शन, अब भगवान के प्रति जो आपका भाव है वो एक्शन में बदल गया है। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं हनुमान का, जो हमेशा तैयार रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। वो वेट कर रहे होते हैं कि भगवान का कब ऑर्डर आए और मैं भगवान की सेवा करूं। आप साउथ में कभी भी आइए, आप देखते हैं ज्यादातर मंदिरों में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको ऑल्टर मिलता है, वो हनुमान जी का ही मिलता है। इनफैक्ट वो मंदिर के बाहर रखा जाता है। और वो कहते हैं कि वो इसलिए कि वो बाहर हमेशा रेडी हैं कि एक बार भगवान का सिर्फ ऑर्डर आए कि करना क्या है, और वो उसको करने के लिए तैयार है। तो ये एक्टिव स्टेट। थर्ड स्टेज आती है मित्र भाव, जिसमें हम अर्जुन हैं। तो भगवत गीता अर्जुन को बताई गई, क्योंकि वो उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं और उनके डिवोटी भी हैं। फिर फोर्थ स्टेज आती है पेरेंटल स्टेज, जिसमें हम नंद महाराज हैं, यशोदा महारानी हैं। तो ये पेरेंटल स्टेज है, वात्सल्य भाव है जहाँ पर। और फिफ्थ जो आता है वो कॉन्जुगल लवर, जहाँ पर गोपीज हैं, राधा रानी हैं, जो सबसे ग्रेट हैं सभी गोपीज के अंदर, उनका आता है। तो ये मेन 5 कैटेगरीज हो गई, जिसके अंदर हर एक जीवात्मा जो है वो भगवान के साथ एक संबंध में है। वो इनमें से कोई भी संबंध हो सकता है। और अभी करंट स्टेज में क्या है, हम वो संबंध को भूल चुके हैं। ना सिर्फ हम भगवान को भूल चुके हैं, हम भगवान के साथ हमारा जो इटर्नल संबंध है, कभी ना मिटने वाला संबंध जो है, हम उसको भी भूल चुके हैं। तो भगवत गीता हमारे साथ वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही है। संबंध, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा संबंध, अभिधेय और ज्ञान। तो ये संबंध जो है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम भगवान के साथ संबंधित हैं इन 5 मेन रूपों के अंदर, और ये हमारा इटर्नल संबंध है। ये कोई टेम्पररी रिश्ता नहीं है कि इस जन्म में था, अगले जन्म में नहीं होगा। ये वो रिश्ता है जो जन्म जन्म से हमारा है। लेकिन क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, तो उनके साथ जो हमारा रिश्ता है, हम उसको भी भूल गए हैं। और ये इटर्नल रिश्ते को रिवाइव करना और उस भगवान को पुनः याद करना, यही भक्ति कहलाती है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं स्वरूप सिद्धि क्या है। तो स्वरूप सिद्धि क्या है कि हम सभी एक रिलेशनशिप में है भगवान के साथ, और वो रिलेशनशिप जो है वो हमारा स्वरूप कहलाता है। हर जीवात्मा का स्वरूप जो है वो उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, वो कहलाता है।
और भक्ति के द्वारा हम अपना जो स्वरूप है वो जान पाते हैं। और जब स्वरूप वो जान पाते हैं तो उस स्टेज को हम स्वरूप सिद्धि कहते हैं, जहाँ हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है उसको हम समझ सकते हैं। जैसे हमने पिछले में देखा स्लाइड्स में कि 5 अलग अलग भावनाओं से हम जुड़े हुए हैं, तो हम किस भावना के साथ भगवान से जुड़े हुए हैं, ये जानना ही स्वरूप सिद्धि कहलाता है। तो अर्जुना जो था वो एक डिवोटी भी था और भगवान के साथ एक मित्र के संबंध में जुड़ा हुआ था। और प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार अगर हम इस स्वरूप सिद्धि स्टेज में आ गए तो हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, और यही असली मुक्ति कहलाती है। अब नेक्स्ट बात आती है भगवत गीता के चैप्टर 10 के वर्स नंबर 12 और 13, जो कुछ इस तरह से है। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। जहां पे अर्जुन ने कहा भगवत गीता सुनने के बाद कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो भगवत गीता पूरी जानने के बाद अर्जुन ने इस तरह से भगवान कृष्ण को समझा है। तो किस तरह से समझा है, एक बार पुनः देखते हैं। परम ब्रह्म, भगवान जो है वो सुप्रीम ब्रह्मन है। हम सब ब्रह्मन है, बट परम ब्रह्म सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है। परम धाम, भगवान जो है वो सब कुछ है। हर चीज का वो रस्सी जो पूरी माला को पिरोए हुए है, वो भगवान है। पवित्रम, भगवान सबसे प्योर है। तो और किसी कोई भी मोड से मटेरियल नेचर उनको उनको अपवित्र नहीं कर सकता, इसलिए वो पवित्रम है। इसलिए जब एक पवित्रम भगवान जब हमें कोई नॉलेज देते हैं तो वो नॉलेज भी पवित्रम होती है। फिर भगवान को पुरुषम कहा गया है। ही इज द सुप्रीम इंजॉयर, शाश्वतम, इटर्नल है वो। दिव्यम, ट्रांसीडेंटल, भगवान की बॉडी सच्चिद आनंद है, ट्रांसीडेंटल है। भगवान ट्रांसीडेंटल है, उनकी बॉडी और सोल में कोई डिफरेंस नहीं है। आदि देवम, ही इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण आए हैं तो भगवान विष्णु आदि देवम में नहीं। यहाँ कृष्ण को आदि देवम कहा गया। ही इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अजम, लॉर्ड इज अनबॉर्न। विभुम, लॉर्ड इज ग्रेटेस्ट। हम सब अणु हैं, लॉर्ड विभु हैं। तो इस तरह से भगवान को एड्रेस करते हैं अर्जुना, जब वो भगवत गीता भगवान से सुन लेते हैं। तो हम भी जब भगवत गीता सुनते हैं और उसके बाद कृष्णा के लिए हमारे मन में इस तरह के भाव अगर नहीं आते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे समझने में कहीं मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो अर्जुना के समान नहीं है अभी। तो ये होना कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इस तरह से नहीं समझ पाए, बट फाइनली कंक्लूजन में हमें समझना चाहिए कि जब तक हम इस कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते तो हम भगवत गीता सही तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या अर्जुना जो है सिर्फ कृष्णा के मित्र थे तो कृष्णा को प्लीज करने के लिए इस तरह के वर्ड्स कह रहे हैं। बट हमने नेक्स्ट वर्ड्स के अंदर देखा 10.13 में, जहाँ पे अर्जुना ने पूरा एग्जाम्पल देके बताया है कि किस तरह से महान अथॉरिटीज जो हैं जैसे नारदा, सीता, देवला, व्यासा, वो सब भी उन्हें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड मान रहे हैं कृष्णा को। और ये सब कौन है जो वैदिक नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब सारी वैदिक नॉलेज और उनके अथॉरिटेटिव डिस्ट्रीब्यूटर्स वो सभी भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मान रहे हैं। खुद अर्जुना भी वो मान रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अर्जुना कोई फ्लैटरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कि कृष्ण को उनको प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो जो सत्य है वो बता रहे हैं आपको।
बट क्योंकि हम भगवान को और उनके साथ अपने संबंध को भूल चुके हैं, हम उस सत्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। भगवान पुरुषम है, हम वो भी वो पुरुष बनना चाहते हैं, हम भी वो सुप्रीम इंजॉय बनना चाहते हैं। इसलिए जब हम कृष्ण के बारे में इस तरह के शब्द सुनते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट अगर भगवत गीता को हमें सही में समझना है तो सुप्रीम पर्सनैलिटी कृष्णा को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड तो मानना ही पड़ेगा हमें। नेक्स्ट भगवत गीता 10:14 में कहा गया है, सर्वम् एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे भगवान, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। देखिए, भगवत गीता में कृष्ण ने जो भी कहा, अर्जुन ने सब कुछ उसे पूर्णतः सत्य मान लिया। पहले के वर्सेस में हमें देखा कि उन्होंने कृष्णा को किस तरह से एड्रेस किया है, और अब वो लास्ट में वो कह रहे हैं कि कोई भी देवतागण या असुरगण उनके इस स्वरूप को नहीं समझ सकता है। तो भगवान कृष्ण को कौन समझ सकता है? तो इस भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन कह रहे हैं कि ग्रेट ग्रेट डेमिगॉड्स जो हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, वो भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। बड़े बड़े जो महात्माज हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, वो भी उनको समझ नहीं सकते हैं। तो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग जो भगवत गीता पढ़ता है और उसके ऊपर कई बार ट्रांसलेशन या कमेंट्री करता है, क्या उसे लगता है वो भगवान को समझ सकता है विदाउट भगवान का भक्त बने बिना? जी नहीं, वो ऐसा नहीं समझ सकता। तो आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, और ये रिलेशनशिप जितना गहरा होगा तो उतना ही आप भगवान को अच्छे से समझ सकेंगे, और भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान के मन की बात आप समझ सकेंगे। आप देखते हैं, आप एक मंडेन एग्जांपल लीजिए। जब हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तब आप देखते हैं कि उनको एक दूसरे के मन की बात उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका पार्टनर आपके मन की बात अपने आप समझ लेता है। उसी तरह जब भगवान और भक्त एक स्ट्रांग रिलेशनशिप में होते हैं तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, ये भगवान को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, भक्त उनकी भावना को समझ जाता है। तो इसी तरह इस भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, ये प्रभुपाद समझ गए हैं, और वो हम सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अर्जुना ये भी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है वो परफेक्ट है। हमें भगवत गीता को पूर्णतः लेना चाहिए। हम सिर्फ भगवत गीता के एक या दो हिस्से को लेके और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे तो ये चीज नहीं चलेगी। वहां वंस अगेन हम अपनी ओपिनियन को प्रूव करना चाह रहे हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग कर्म योग प्रिंसिपल को लेते हैं तो वो कहते हैं हमने पूरी भगवत गीता पढ़ी है, हमसे कर्म योग निकाल लिया है हमने, हम बस कर्म करते हैं अपना, हमें भक्ति वर्ग की जरूरत नहीं है। तो वंस अगेन आपने सिर्फ एक पोर्शन लिया है भगवत गीता का और बाकी सब आपने रिजेक्ट कर दिया है। बट अर्जुना क्या कह रहा है, ही सेइंग दैट मैं आपने जो कुछ भी कहा मैं उस सब को एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब तक आप भगवत गीता का भी पूर्णतः एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे तो आप भगवत गीता को या कृष्ण को नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए पहले पूरी भगवत गीता को पढ़िए, कृष्ण को समझिए जिस तरह से अर्जुन ने समझा है, तभी आप भगवान कृष्ण के उस उपदेश को गीतोपनिषद में जो है उसको समझ सकेंगे। अब सवाल आता है कि भगवत गीता को कैसे समझे। तो इसके लिए सबसे पहले कहा गया है कि आपका भक्ति भक्तिपूर्ण भावना आप में होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ डिवोशन, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक डिवोटी ही भगवान के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि वो एक इटर्नल रिलेशनशिप में है। हालांकि अभी वो भूल गया है, लेकिन अगर वो एक बार के लिए वो डिवोशन स्टैब्लिश कर ले, वो संबंध बना ले, तो उसके लिए भगवत गीता समझना आसान हो जाएगा। साथ ही हमें ये भी जानना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के बराबर नहीं है। हमें जानना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के बराबर नहीं है, और ना ही भगवान कृष्ण कोई ऑर्डिनरी है या कोई ग्रेट पर्सनैलिटी है।
बल्कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। तो जब तक हम ये स्पिरिट ऑफ डिवोशन, भक्ति का भाव नहीं लेंगे और कृष्णा को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नहीं मानेंगे, इसके बिना भगवत गीता को समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कहा गया है कि एटलीस्ट थ्योरेटिकली हम ये एक्सेप्ट कर लें कि भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। प्रभुपाद ने भगवत गीता पढ़ ली है, गुरु परंपरा में भगवत गीता पढ़ी है, सभी शास्त्र, सभी अथॉरिटी, अर्जुना मान रहे हैं उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो एटलीस्ट इन सब एविडेंस से हम इतना तो थ्योरेटिकली एक्सेप्ट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं, सर्वशक्तिमान है। अगर हम ये मान के भगवत गीता जब पढ़ना शुरू करते हैं तो भगवत गीता समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो भगवान को हमने सुप्रीम पर्सनैलिटी मान लिया, हम उनके साथ एक इटर्नल रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप डिवोशन का है, भक्ति का है, वो हमने एस्टेब्लिश कर लिया। फिर एक सम्मिश्र भावना के अंदर आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये ग्रेट मिस्ट्री जो है वो आपको समझ में आने लगेगी। बिना उसके ये चीज समझना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक गुह्यतमम ज्ञान है। ये भगवत गीता के एक वर्स में आता है, चैप्टर 9 के। इसलिए इस गुह्यतमम ज्ञान को हमें समझना है, तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा जो प्रभुपाद यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकेंगे। अब आता है कि ये भगवत गीता का पर्पस क्या है। भगवान कृष्ण ये भगवत गीता जो बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? तो सबसे पहला बताया गया है कारण कि ये मनुष्य जो मटेरियल एग्जिस्टेंस में फंस गए हैं, उनको इससे पार पाने के लिए, इस भव सागर से बाहर निकलने के लिए हमें इस भगवत गीता के नॉलेज की जरूरत है। हम सभी मुश्किलों में हैं, चिंताओं में फंसे हुए हैं इस भव सागर के। हम सब आत्मा हैं, हम सब इटरनल हैं, लेकिन हम सब इस असत के अंदर पड़ गए हैं। हम एक ऐसी बॉडी में हैं जो डाई होती है। तो जब आप इटरनल हैं, तो जब तक आप इटरनल एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे, आप खुश नहीं हो सकते। तो आप चिंता में हैं, मुश्किलों में हैं, आप प्रसन्न नहीं है, आनंद में नहीं है। तो वो सब आनंद प्राप्त करने के लिए ही आपको भगवत गीता का नॉलेज दिया गया है। ये कोई फाइनेंस पढ़ाने के लिए या कोई माइंड मैनेजमेंट सिखाने के लिए भगवत गीता नहीं बोली गई है। इसका पर्पस है कि वो पर्पस आपको समझना जरूरी है। ओवरऑल पिक्चर लेना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, नहीं तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद एक इंटरव्यू में एग्जांपल देते हैं, एक एक मछली है, उसको जल से बाहर निकाल दिया गया है और अब उसको आप सब तरह की अ, सुविधाएं देने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो मछली खुश रह पाएगी? जी नहीं, वो नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि मछली का ओरिजिनल स्वरूप पानी के अंदर रहना है। तो अगर आप उसे वाकई खुश रहना चाहते हैं तो आप वापस जो आप मछली को आपने बाहर निकाला उसे पुनः पानी में छोड़ दीजिए, और तब आप देखेंगे कि वो खुश हो सकती है। इसी तरह से हम भी एक इटरनल आत्मा है और उस परमात्मा के साथ ही हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि अभी इस भवसागर में हम उस परमात्मा से दूर आ गए हैं, इसलिए हम भी दुखी हैं। और वही हमारा मेन कारण है। हमारी चिंता का कारण यही है। हम में से कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि हम इटरनल हैं। बट बार बार हमें जन्म और मरण के इस चक्कर से गुजरना ही पड़ता है। यही हमारी चिंता का कारण है। तो इन सब चिंताओं से मुक्ति हो सकती है अगर हम उस भगवान के धाम में चले जाते हैं। और वहां कैसे जाना है, ये प्रोसेस हमें भगवत गीता समझाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भगवत गीता को का प्रॉपर स्टूडेंट कौन होगा। तो इसमें कहा गया है कि बहुत सारे लोग जो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम सब मुश्किलों में फंसे हुए हैं। हम सब इस भवसागर में फंसे हुए हैं। उन कुछ लोगों के अंदर जो ये समझ सकते हैं कि वी आर इन सफरिंग। आप बाय डिफॉल्ट किससे भी पूछिए कि कैसे हैं आप सर, आपके क्या हाल है, सब कुछ क्या कहेंगे? भाई हम तो बहुत बढ़िया हैं, हम बड़े खुश हैं। चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो,
वो हमेशा उसका आंसर यही होता है। तो आप देखिए कि सत्य बोलना कितना मुश्किल है। तो कहते हैं कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो ये जान पाते हैं कि वो वाकई सफरिंग के अंदर है। और उन कुछ सफरिंग जानने वाले लोगों में से भी कुछ ही हैं जो ये कोशिश करते हैं कि हम क्यों सफर कर रहे हैं। वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी सफरिंग क्यों है। और इस सफरिंग का, उन सब में से भी कुछ ही लोग हैं जो उस सफरिंग का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तो वही है जो ये जान पाया है कि हम सफरिंग में हैं, जो ये जान पाया है, जो इस सफरिंग का सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहता है, वही परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। और इसी को शास्त्र में कहा गया है ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो आप इंक्वायरी कीजिए, जिज्ञासा तो करिए आप कि आपकी सफरिंग क्यों है, मैं इस सफरिंग का अंत कैसे कर सकता हूं। जब तक आप ये जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, तब तक आप प्रॉपर स्टूडेंट नहीं है भगवत गीता के पढ़ने के। इस इंक्वायरी के बिना अगर आप भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप वो एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल पाएंगे जो अर्जुन निकाल सकता था, जो प्रभुपाद निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आप डेफिनेटली देख पाएंगे कि वहां सफरिंग है। बट उस सफरिंग का आप एक टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, वो भगवत गीता बताती है। तो जब आप अपनी सफरिंग्स का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो आप एक प्रॉपर स्टूडेंट बनते हैं भगवत गीता को पढ़ने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि एक मनुष्य रूप में हमारी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो फेलियर मानी जाएगी अगर हम ये इंक्वायर नहीं करते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उनके रिलेशनशिप, उनसे हमारा क्या रिश्ता है, उसके बारे में अगर हम इंक्वायरी नहीं करते हैं, तो हमारी ये ह्यूमन लाइफ एक वेस्ट है, व्यर्थ चला गया हमारा ये मनुष्य जीवन। और हम इस मनुष्य जीवन में हमने जो भी कर्म किया, वो सब भी व्यर्थ चला गया अगर हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हु इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसलिए कहा गया है कि सिर्फ वही मनुष्य जो ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि हम परेशानियों में क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, दे आर द प्रॉपर स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा आना बहुत जरूरी है। हमारा चैनल का नाम ही है जिज्ञासु मुनि। इंक्वायरी कीजिए, क्वेश्चन करिए हर चीज के पीछे में। कुछ भी ऐसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कर लीजिए। भगवत गीता भी, उन में भी अर्जुन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो ब्लाइंडली कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किसी गुरु के पास भी जाते हैं तो कहा गया है कि आप प्रश्न पूछिए, इंक्वायरी, बी इंक्विजिटिव। सो दैट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इफ यू आर नॉट डूइंग दोस थिंग देन वी आर आई एम सॉरी टू से, हम ह्यूमंस ही नहीं है। और लास्ट में कहा गया है कि ये सब इंक्वायरी होने के बाद भी हमें भगवान के अंदर पूर्ण तरह विश्वास होना चाहिए, उनके लिए पूर्ण सम्मान होना चाहिए। तभी हम भगवान को अच्छे से समझ सकते हैं, और तभी हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और अ, भगवान के प्रति विश्वास और उनके प्रति उनका आदर, यही को क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट में होगी जो भगवत गीता को पढ़ना चाहता है। अब आता है कि भगवान कृष्ण क्यों डिसेंड होते हैं, वो जन्म क्यों लेते हैं। हम जानते हैं कि वो अजन्मे हैं, तो जन्म क्यों लेते हैं। तो वो जन्म इसीलिए लेते हैं कि एक मनुष्य जीवन का लाइफ में रियल पर्पस क्या है। जब वो पर्पस वो भूल जाता है, जिस सोसाइटी में वो पर्पस भुला दिया जाता है, वहां भगवान कृष्ण खुद आते हैं या अपने किसी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेजते हैं, ताकि वो जो पर्पस ऑफ लाइफ जो हम भूल चुके हैं उसे दोबारा से रिस्टैब्लिश कर सकें। तो बहुत बहुत ह्यूमंस में जो कि अवेकन हो चुके हैं, जिन्होंने ब्रह्म जिज्ञासा करी है, उनमें से कुछ ही हैं जो उस
भगवान की पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए भगवत गीता कही गई है। क्यों? क्योंकि हम सब जीवात्माओं के प्रति भगवान में करुणा भाव से भगवान भरे पड़े हैं। और उसी करुणा के वजह से जब वो हमारे को सफर करते हुए देखते हैं, हम इटर्नल को इस असत दुनिया में देखते हैं सफरिंग होते हुए, तो वो इन सब का सोल्यूशन करने के लिए डिसेंड होते हैं, या भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, ताकि हम इन सब सफरिंग को अंत कर सकें। फिर डिस्कस हुआ है कि अर्जुना की पोजीशन क्या है। तो हम समझ चुके हैं कि अर्जुना भगवान के मित्र हैं, उनके भक्त हैं। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि वो कभी भी इस तरह के अज्ञान के अंधकार में नहीं फंस सकते। वो भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अर्जुना को जो है, वो कुरुक्षेत्र के जो मैदान में युद्ध हुआ था, उसके अंदर उनको उस इग्नोरेंस में, अज्ञान के अंधकार में रहने की एक्टिंग करनी पड़ी है। उनको उसमें रखा गया, ये भगवान की इच्छा से हुआ, ताकि वो लाइफ के प्रॉब्लम्स को जो हैं उसके बारे में भगवान से पूछ सकें, और जब वो क्वेश्चंस करेंगे तो भगवान उनका आंसर दे सकेंगे, ताकि उन आंसर्स के थ्रू हम अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। और जब हम उस हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो हमारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण होता है। द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है हमारी, वो पूर्ण होती है, परफेक्ट होती है। इसी वजह से अर्जुना को उस पोजीशन में रखा गया है। तो हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अर्जुना हमारी तरह नहीं है, बट हम सबको भले में, हम सबकी भलाई के लिए ये जो प्लान है कृष्णा जो अर्जुन को दे रहे हैं, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सभी के लिए है। अर्जुन को सिर्फ एक माध्यम बनाया गया है, ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ताकि हम सब अपनी लाइफ को कैसे जिएं, ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको समझ सकें, और अपनी ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें। सो वी शुड बी रियली थैंकफुल नॉट ओनली टू द लॉर्ड कृष्णा, हमें अर्जुन के लिए भी उतना ही थैंकफुल होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा संस्कृत वर्स है, स्वभावो धृतिक्रमः, जिसमें कहा गया है कि स्वभाव को बदलना कठिन होता है, चेंजिंग नेचर इज डिफिकल्ट। तो इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी आती है, वो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि और उनकी उनकी पत्नी थी, और काफी समय से उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनकी पत्नी उन्हें काफी बार इस चीज के लिए टोका करती थी कि आप इतने बड़े भक्त हैं, भगवान से प्रे करिए कि हमें संतान की प्राप्ति हो। लेकिन ऋषि जो थे वो अपने में बहुत संतुष्ट थे, उन्होंने कहा जब भगवान की इच्छा होगी तो हमें संतान भी प्राप्त होगा। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पे उनके भी मन में एक बार ये इच्छा हो गई, और इस इच्छा के साथ जब वो एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते वक्त जब वो जल अर्पण कर रहे थे, तभी ऊपर से, आसमान से उड़ते हुए एक चील के चुंगल से बच के एक छोटी चुईया जो थी वो उनके हाथ में आकर गिर गिर पड़ी। और ऋषि ने ये भगवान का संकेत मान लिया कि भगवान ही चाहते हैं कि भगवान मुझसे मैं एक संतान की इच्छा रख रहा था, और भगवान ने मुझे ये दिया इसी वक्त, तो शायद यही मेरी संतान बनने के लायक है। तो बहुत ही तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप से उस चुहिया का, छोटी चुहिया जो थी, उसको एक बहुत ही सुंदर लड़की में उन्होंने उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और वो घर ले गए। घर ले गए तो उनकी जब पत्नी ने देखा तो उन्होंने पूछा, अरे भाई ये कौन है? तो ऋषि ने कहा कि भाई इस तरह से संतान की इच्छा करके जब मैं भगवान को अर्घ्य अर्पण कर रहा था तो ये मेरी गोद में गिर गई, और ये मेरी अब हमारी संतान है। तो पत्नी भी बहुत खुश हुई, उसने उसे अपनी संतान मान के पालन पोषण किया उसका। कुछ समय बाद जब वो लड़की थोड़ी और बड़ी हो गई, तो माँ को चिंता होने लगी कि भाई इसका विवाह करिए, इसके लिए अच्छा जो है लड़का ढूंढिए। तो ऋषि तो फिर से वही अपनी तपस्या में बिजी थे, वो उन्हें फिर से बोलने लगी कि भाई लड़की इतनी बड़ी हो गई है, आप उसकी शादी के विवाह के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, सोचिए।
तो ऋषि कहते हैं, आप उस लड़की से ही पूछ लेते हैं कि भाई उसे किस तरह का पति चाहिए। तो लड़की कहती है, भाई मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हो। अब आप ढूंढिए कौन है। तो इसी बात को सोचते सोचते अगले दिन जब फिर स्नान करते हैं तो वो सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि सूर्य ही शायद वो है जो सर्वशक्तिमान है। तो वो मंत्र पढ़ते हैं और सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। तो पूछते हैं कि आप मेरी बेटी से शादी करिए। तो सूर्य भगवान पूछते हैं कि आपने मेरा ही आह्वान क्यों किया। तो ऋषि कहते हैं कि भाई उसे सर्वशक्तिमान से शादी करनी है, तो आप बताइए कौन है। तो मुझे लगा आप ही है, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया। अगर कोई है जो आपसे भी शक्तिशाली है तो वो मुझे बताइए। तो सूर्य भगवान कहते हैं, वैसे तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बट कभी कभी ये जो बादल होते हैं ये मुझे ढक लेते हैं, और ये जो बादल मुझे ढक लेते हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाता। मैं अपने प्रकाश से उनको छिन्न भिन्न नहीं कर पाता। तो मैं कहूंगा ये बादल ही शायद मुझसे ज्यादा शक्तिशाली। तो ऋषि ने फिर मंत्र पढ़ा और आह्वान किया संवर्तक का, जो सबसे घने बादलों के भी में सब बादलों में सबसे श्रेष्ठ है। और संवर्तक को बुलाया। संवर्तक से पूछा, आप बताइए, क्या आप ही सर्वशक्तिमान है। तो संवर्तक ने कहा, हाँ मेरी भी शक्ति तो बहुत है, लेकिन ये बड़े बड़े माउंटेन है, स्पेशली जो हिमालयाज है, वहां जब मैं उनसे जाके जब मैं टकराता हूँ तो मैं सारी शक्ति के बाद भी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो मेरे प्रवाह को रोक लेते हैं। और हिमालय को अपनी जगह से हिला पाना ये मेरे लिए संभव नहीं। तो ऋषि जो है वो हिमालय को आह्वान करते हैं। हिमालय का आह्वान पढ़ते हैं तो हिमालय भी कहते हैं कि हाँ शक्तिशाली तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मेरी जो परेशानी है वो ये है कि मेरे अंदर रहने वाले चूहे जो हैं वो मुझ में छेद करते रहते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि उनकी शक्ति बहुत है और उनके सामने मैं बिल्कुल कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो ऋषि जो है उन चूहों में जो सबसे अच्छे प्रिंस रैट जो होता है उसका आह्वान करते हैं। और जैसे ही वो प्रिंस रैट का आह्वान करते हैं उसको, जब प्रिंस रैट को अपनी लड़की को दिखाते हैं तो लड़की वो बड़ी प्रसन्न होती है और मुस्कुराने लगती है। शी इज ब्लशिंग टू सी द प्रिंस रैट। तो ये देख के ऋषि के मुंह से ये शब्द निकलता है कि स्वभावो दुरतिक्रमः, कि आप अपना स्वभाव बदल नहीं सकते हैं। वो पुनः अपनी मंत्र शक्ति से अपनी बेटी को पुनः चुहिया बनाते हैं और उन दोनों का विवाह होता है। और इस तरह इस कहानी का अंत होता है। तो मेन लर्निंग ये है कि हम अपने स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। और आप देखते हैं कि लोअर नेचर से हायर नेचर में जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए अपने स्वभाव में बदलाव की जरूरत है। और ये स्वभाव में बदलाव मुश्किल होता है। तो इस स्वभाव में बदलाव के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम तरीका लेते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स का। और इनकी पूरी भरमार है। आप देखिए, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, सब अलग अलग टॉपिक्स पे बात करती हैं, बट सब आपकी हेल्प करने की कोशिश करती हैं। तो इन बुक्स के माध्यम के थ्रू आप अपनी स्वभाव के जो लोअर स्टेटस में है उसको हायर स्टेटस में ले जाने की कोशिश करते हैं। बट आप देखते हैं कि इन सब पढ़ने के बाद भी बहुत कम ही लोग हैं जो अपने स्वभाव में कुछ हद तक बदलाव ला पाते हैं। और भगवत गीता, और सबसे बड़ी एगोनी इसमें यह है कि इनमें से सब ये सेल्फ हेल्प बुक तो कहती हैं, बट वो सेल्फ कौन है इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो भगवत गीता वही समझा रही है कि हम वो शरीर नहीं है। तो ये सारी बुक्स हैं जो आप देखिए वो कहीं ना कहीं शरीर को ही हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। या जो कुछ हैं वो थोड़ी ऊपर लेवल पे हैं तो वो माइंड को हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। इससे कुछ ऊपर हैं तो वो इंटेलिजेंस को हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ है जो वो आपकी ईगो को हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। बट सेल्फ, रियल सेल्फ कौन है? आत्मा। तो इनमें से कोई भी बुक ऐसी नहीं है सेल्फ हेल्प बुक्स में से जो मैं कहूंगा आत्मा के लेवल पे आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। तो बिगेस्ट सेल्फ हेल्प बुक और द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक विच इज एवर रिटन, दैट इज भगवत गीता एज इट इज। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, वही हमारे सबसे अच्छे वेल विशर है। वो हमें सबसे अच्छे से जानते हैं। तो वही हमारी सबसे अच्छे से तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप कोई एक किताब ढूंढ रहे हैं जो सेल्फ हेल्प कर सकती है, जो आपके लोअर नेचर को चेंज कर सकती है,
जो आपके मटेरियल नेचर को स्पिरिचुअल नेचर में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो भगवत गीता एज इट इज ही है। इस वीडियो का हम अंत करना चाहेंगे एक बार पंचतत्व हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी। आप सब मेरे साथ बने रहे इस समय के लिए। इंट्रोडक्शन का ये पहला पार्ट था। मेरे ख्याल से आपने ज़रूर कुछ समझा होगा इसमें, स्पेशली भगवत गीता को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन भगवत गीता को अच्छे से पढ़ सकता है, कृष्णा को कौन समझ सकता है। इन सब बातों पे एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा, आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। और मैं कहूँगा ये वीडियो देखना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इसको देखने के बाद आप वो इंट्रोडक्शन पढ़िए, आप इसमें से बहुत कुछ निकाल पाएंगे। ये सिर्फ ये वीडियोस उनका रीडिंग का अल्टरनेट नहीं है, बट ये सिर्फ आपकी रीडिंग को एनहांस करने के लिए। मैं ये वीडियो बनाने के साथ साथ पढ़ता हूँ, और मेरा वीडियो मैं देखने के बाद भी पढ़ता हूँ, ताकि उस नॉलेज को हम असेम्बलेट कर सकें। ज्ञान को लेना एक अलग चीज है, लेकिन उस ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और भगवत गीता में को अच्छे से पढ़कर हम उस ज्ञान को विज्ञान में बदल पाएंगे और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू। हरे कृष्णा।